الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ انعام کا خلاصہ آج عرض کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب تلاوت میں 6 نمبر پر ہے، اور جس ترتیب سے قرآن پاک اترا 55 نمبر پر آئی، 20 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں کی خوبی یہ ہے کہ ان میں زیادہ عقائد کا بیان ہوتا ہے، اور اسلام کے بنیادی عقیدے، توحید، رسالت، قیامت، ختم نبوت، صداقت قرآن، اور اسی طریقے سے اس میں تذکیرات ثلاثہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بعث بعد الموت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں چند صورتیں ایسی ہیں جو الحمد کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید جب شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ الحمد سے، اور دوسری صورت یہ سورہ انعام ہے جو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض سے، اور تیسری صورت آگے سورہ کہف آئے گی، وہ بھی الحمد سے شروع ہوگی۔ تو اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا ذکر ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، روشنی اور اندھیرے کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کا ایک وقت متعینہ مقرر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہے، جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا کہ جو خدا کی آیات سے اعراض کرتے ہیں ان منکرین کے نتیجے کو بیان کیا، اور پھر آگے اسی رکوع کے اندر ہی غافلین کی تنبیہ بیان کی گئی اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ قرآن مجید کی صداقت اسی رکوع کے اندر وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، قرآن مجید کی صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور یہ کہ انبیاء علیہ السلام جتنے اللہ نے نبی بھیجے، انسانوں میں بھیجے، فرشتوں میں سے کوئی نہیں آئے۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو یہاں پر نبی بھیجتے تو زمین پر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کے لیے فرشتے نبی آتے، چونکہ انسان ہیں اس لیے ان کے لیے انسانوں ہی کو مبعوث کیا گیا اور ان کو بھیجا گیا۔ اس سے اگلے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر سیر و سیاحت کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ یہاں دنیا کا نظام دیکھنا اس نیت سے کہ اس سے ہمیں سبق حاصل ہو، عبرت ہو، اور یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں یہ جو نظام چلا رہے ہیں اس میں اس کی قدرت اور اس کی طاقت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نتائج کیا ہیں۔ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے، جو برے کام کرتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس نیت سے زمین کی سیر کرو تاکہ مجرمین کا انجام تمہارے سامنے آ سکے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت کا ذکر ہے کہ قیامت کا دن کا مالک بھی اللہ ہے اور دنیا کا مالک بھی اللہ ہے۔ دن رات کو اسی نے تسکین کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوری کائنات کے نظام کو خود اکیلا چلاتا ہے، اور اسی پر اسلام لے آؤ، مشرکین میں شامل نہ ہو۔ اور پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ جب بھی کوئی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے تو یاد رکھو اللہ کے امر کے بغیر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، اس کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، وہ تنہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اے پیغمبر آپ اس کا بھی اعلان کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ کی احکامات کو اور اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں مشرکین کی ناانصافی اور ان کے شرک کو بیان کیا گیا اور ان کی ظلم کی کیفیت کو بیان کیا گیا، اور پھر معاشر کے اندر مشرکین کی ناکامی ہوگی، وہ کامیاب و کامران نہیں ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ پھر ان کی خباثات کو بیان کیا گیا۔ ان کی پہلی خباثت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور
हक बात को जुठलाते हैं। दूसरी खिबासत यह है कि कुरान मजीद को सुनने से इनकार करते हैं, कानों में उंगली ठोस देते हैं, अपने उनके दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं। तीसरी खयानत उनकी यह है कि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को कहा न कहा बराबर करते हैं, यानी कुरान मजीद का सुनना न सुनना उनके लिए बराबर है। इस तरीके से वो लोगों को कुरान से दूर हटाने की कोशिश करते हैं। फिर उनके माशर की हौलनाकी का मंजर बयान किया गया कि ये जहन्नम की आग में जाएंगे और काफिरों को क़यामत के दिन हसरत होगी, काश हम अच्छे काम करते, आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। इसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की ज़िंदगी का अंजाम भी बयान किया और आखिरत की ज़िंदगी की तरफ तरगीब भी दिलाई। और फिर अगले रकू के अंदर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिन लोगों ने तकज़ीब की, क़द ख़सरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, अल्लाह की मुलाकात का इनकार किया, उन लोगों के नताइज बयान किए गए और दुनिया की ज़िंदगी को बताया गया कि ये ज़िंदगी सिवाय लहव लाभ, खेल और तमाशे के और कुछ नहीं। आखिरत की ज़िंदगी मुत्तकी और परहेज़गार लोगों के लिए है। जी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह के नबी से पहले भी नबियों के साथ इस्तेहज़ा मज़ाक की कोशिश की गई और उनकी बातों को झुठलाया गया। आपके साथ भी ऐसा होगा, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी गई कि अक्ल सलीम हक को कबूल करने के लिए काफ़ी है। ये तो अल्लाह की तरफ से अहकामात और वही आ रही है ना, अगर वही ना भी आए, सिर्फ इंसान की अक्ल हो और उसको अक्ल सलीम मिले तो उसको बात समझ में आ सकती है कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल दिया है, अल्लाह की वही के ताबे है, अल्लाह के अहकामात को माने, अल्लाह के अहकामात की इत्तबा करे, अल्लाह के अहकामात का इनकार न करे। फिर अल्लाह ने कुफार की मिसाल दी कि जैसे गूंगे, बहरे और अंधेरे में हों, वो हक पर नहीं आ सकते, ऐसे ये काफिर भी हक पर नहीं आते। इससे अगले रकू में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार की सख्त दिली और पैगम्बरों की नाफरमानी के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजाक, उनके अहकामात इलाही को भुलाना और फिर इस तरीके से इतने सख्त दिल थे कि वो अल्लाह के दीन का इनकार करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के बगैर कोई हक की राह बताने वाला नहीं, ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह जिसको चाहते हैं उसे हिदायत का रास्ता अता फरमाते हैं। अल्लाह के बगैर कोई कारसाज नहीं है। फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत का मकसद बयान किया कि हमने वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, नबियों को रसूलों को इसलिए भेजते हैं ताकि वो बिशारत भी दें और डराएं भी सही। जो शख्स ईमान लाए और जिसने इस्लाह किया उसके लिए कोई खौफ नहीं और कोई गम नहीं होगा। जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करेंगे ये फासिक होंगे। इससे अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐलान कराया कि महबूब आप ये कह दें, ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, अल्लाह के ख़जानों का मैं मालिक नहीं, मेरे पास ख़जाइन नहीं, वला आलमुल गैब, इल्म गैब सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई नहीं जानता, अल्लाह जिसको जो जितना बता दे। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, हाँ मेरी तरफ वही की जाती है, मैं उस वही की इत्तबा करता हूँ। और फिर ये फरमा दीजिए कि आमा और बसीर, अंधा और देखने वाले जैसे ये बराबर नहीं हो सकते, इस तरीके से मानने वाले ना मानने वाले बराबर नहीं हो सकते, इस्लाम और कुफर बराबर नहीं हो सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की सिफात बयान की है कि जो अहले ईमान हैं, नेक लोग हैं, जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उनके साथ होगी। सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हैं। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़राइज़ बयान किए गए, उनमें से एक ये है कि मुसलमानों की दिलजोई करें, उनको सलाम करें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की बिशारत दें और फिर इस तरीके से उन्हें ये कहें कि तुम्हारी तौबा कबूल होगी। इससे अगले रकू का खुलासा, उसके अंदर मुखालिफीन तौहीद से मुकातिया कि उनसे अपने ताल्लुकात कता ताल्लुक करो। कुल इन्नी नुहीतु, इसमें यह हुक्म दिया गया कि शिरक से इज्तनाब करना चाहिए, मुशरिकीन से कता ताल्लुक किया जाए, मुशरिकीन जो तकज़ीब करते हैं हक बात की उनसे हमें अलहदा रहना चाहिए। और फिर अजाब अल्लाह ही देता है, उसके कब्ज़े कुदरत में है, वो जिसको जब चाहे अजाब दे। अजाब किसी के मांगने से नहीं आता, अल्लाह जब चाहते हैं किसी को इब्तला में डाल देते हैं। कायनात के तमाम ख़जाने अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं और वो जानता है बाहरो बार
خشکی اور تری میں جو کچھ ہے، اس طریقے سے اللہ کے قبضہ قدرت میں سارا رزق ہے۔ پھر جس کو جتنا رزق دینا ہے، اور جو چیز کوئی خشک ہے یا تر ہے، ہر چیز اس نے اپنے علم میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، دن بھی رات بھی، اور ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ بندے انسان عاجز ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظلمات اور اندھیروں سے بچائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نجات دہندہ ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اللہ کے عذاب کو کوئی شخص ختم نہیں کر سکتا۔ جس پر اللہ عذاب ڈالیں وہ اللہ کی عذاب اور گرفت میں ہوگا۔ اس طریقے سے جو دین کے منکرین ہیں ان سے علیحدگی کا حکم دیا گیا کہ قرآنی آیات کا ساتھ جو اختلاف کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو علیحدہ ہونا چاہیے، اور کفار کو نصیحت کی اجازت ہے۔ ان کو نصیحت تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کفار کے ساتھ اپنے تعلقات نہ رکھیں اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دنیا داروں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے قطع تعلق، یہ نہ ہو کہ آپ دنیا والوں کے ساتھ مل جائیں اور ان کے معاملات میں اپنی زندگی گزاریں، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ اپنے جماعت کو، اپنے ساتھیوں کو کہیے کہ یہ ان لوگوں سے دور ہو کر رہیں۔ اگلے رکوع کے اندر عقیدہ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بھی بیان فرمائیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا۔ فرض نبوت کے اعلان بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان سے پکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کو پکارو۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہدایت رب کے قبضہ قدرت میں ہے، اور پھر ہم اللہ کے مسلمان بندے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کریں۔ اسی طریقے سے تقوی کا حکم ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو ذکر کیا کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو سے پوچھا کہ آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم اس کھلی گمراہی میں ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو ہدایت کی طرف ترغیب دی۔ اس میں پھر قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو نقل کیا ہے، چونکہ یہ وہ دور تھا وہ لوگ ستاروں کی، سورج کی، چاند کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوالیہ انداز میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات کو چاند ستارے کو دیکھا، کہا کہ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جس وقت وہ ستارہ غائب ہو گیا فرمایا لا احب الآفلین، میں اس کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہونے والا ہو۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا اور وہ یقیناً چمکتا ہوا ہے ستاروں سے زیادہ، تو فرمایا پھر یہ رب ہے۔ پھر جب وہ ختم ہو گیا تو فرمایا جو غائب ہو جائے اس کو میں اپنا خدا نہیں مان سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، وہ بہت زیادہ چمکدار تھا، فرمایا یہ ان سب سے بڑا ہے، تو کیا یہی رب ہے؟ لیکن جب وہ سورج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی بری مما تشرکون، جس سے کا تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو یوں سمجھ لیجئے ہماری ہر عبادت کی نیت میں وہ دعا ہونی چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اور والد کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، لیکن ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر حضرت اسی مسئلہ توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے مسلک کے توحید کے حوالے سے، سب نبیوں کا ایک ہی مسلک تھا اور وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ ہاں ان کے اندر شریعتوں کے احکامات میں ترمیم و تنسیخ ضرور رہی ہے۔ اسی کو اس اگلے رکوع میں بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق کو، حضرت یعقوب کو، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ایسے نوح علیہ السلام کو ان سے پہلے، پھر ان کی اولاد کے اندر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، یہ تمام نیک لوگ انبیاء ہیں۔ اور پہلے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، احسان والے، ان کو کہا کل من الصالحین، سب نیک لوگ، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، وکلا فضلنا علی العالمین۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلتیں دی، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام
तकरीबन 17-18 नबियों का जिक्र है और ये बताया गया कि सबका मकसद एक ही था, अल्लाह के दीन की दावत। और फिर इन सब का फरीज़ा एक ही था कि लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देना, अल्लाह की किताब समझाना, शरीयत के अहकामात बताना। अपनी तरफ नहीं बुलाते थे बल्कि रब की तरफ बुलाते थे और ख़ुद भी अपने रब की इबादत करते थे। इससे अगले रकू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की अज़मत और तौहीद की दावत को बयान फरमाया है और बताया कि हमने आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब दी, उसमें भी नूर और हिदायत। इस तरीके से आपको किताब दी, हाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, ये बड़ी बाबरकत किताब है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, ये तस्दीक करती है जो पहले यहूद व नसारा के पास किताबें मौजूद हैं। और इस कुरान को भेजने का मकसद ये है कि लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा, मक्के वालों को आप डराइए और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं। चूँकि आपकी नबुव्वत आफाकी आलमी है लेकिन आए मक्के में हैं तो आपने दावत की इब्तदा वहाँ से की। वो लोग जो ईमान लाए, आखिरत पर यकीन रखते हैं और वो अल्लाह की अपनी नमाज़ों को हिफाजत करते हैं। और फरमाया उनसे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ का इफ्तरा और बहतान बांधे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप पर वही की गई है, आपको शरीयत के अहकामात दिए गए हैं। इससे अगले रकू में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के मनाजिर बयान फरमाए कि इन्नल्लाह खालिकुल हब्बि वन नवा, अल्लाह तबारक व तआला पैदा करते हैं ये गुठरी से भी और इस तरीके से दानों को फाड़ के, जैसे अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करते हैं मुर्दों से जिंदा और जिंदू से मुर्दा को, यानी उसकी कई मिसालें दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हम दाना ज़मीन में डालते हैं, मुर्दा है, इसको फाड़ कर वो बाहर निकलता है और फिर वो खाने पीने के काबिल। इस तरीके से अंडा मुर्दा है, उससे बच्चा जिंदा है, बच्चा मुर्गी जिंदा है, उससे अंडा मुर्दा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानी है। इस तरीके से अल्लाह का सुबह को निकालना, रात को कायम करना, सूरज और चाँद उनकी हिसाब एक वक्त मुतय्यना पर उनका आना और चलना, इस तरीके से रातों का सितारों का होना और सितारों के रास्ते से ज़रिए से राह तलाश करना, ये सब अल्लाह की कुदरत की अलामतें हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे रकू में अपनी कुदरत के इनामात बयान किए। उनमें बताया कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से मुख्तलिफ फसलें उगाई हैं, खजूरें हैं, अनाज है, अंगूर हैं और इसी तरीके से जैतून हैं, अनार हैं, बागात हैं, मिलती जुलती एक दूसरे से नेमतें हैं। ये अल्लाह का इनाम है जो इस पूरी सूरत के अंदर सबसे ज़्यादा कुदरत बारी ताला के यूँ समझ लीजिए कि नमूनों को बयान किया जा रहा है। इससे अगले रकू में अल्लाह ने बताया कि ज़मीन व आसमान को सबसे पहले अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है, इससे पहले इसे कोई नहीं बना सका। यही तुम्हारा रब है जो एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं। वो हर चीज़ का खालिक है, इबादत के लायक वही है, उसी की इबादत करो। ला तुदरिकुहुल अब्सार व युदरिकुल अब्सार, तुम में से कोई आदमी अल्लाह की, तुम्हारी आँखें अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती और वो तुम सबको देख सकता है। इसमें रोयत बारी ताला के एक मसले की तरफ इशारा है कि क्या अल्लाह की ज़ात को देखना मुमकिन है या नहीं। तो एक तो बात मुसल्लम है कि इस दुनिया के अंदर बिल्कुल नामुमकिन है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था तो अल्लाह ने फरमाया कि तो आप में ताकत नहीं कि आप देख सकें, अगर देखना चाहते हैं तो पहाड़ को देखें। चनाचे उस पर अल्लाह ने तजल्ली डाली और मूसा अलैहिस्सलाम गिरे बेहोश हो गए। आखिरत के अंदर जन्नत में सब लोग देखेंगे। एक है रोयत, एक है इदराक। रोयत यह है कि एक चीज़ सामने है, हम उसको देखते हैं, मसलन सूरज है, इसको हम देख रहे हैं, लेकिन हम इसका इदराक नहीं कर सकते कि उसके करीब जाएं, उसको पाएं, उसको देखें, इसकी तपिश कितनी है, गर्मी कितनी है, बड़ा कितना है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इदराक करना ये मखलूक में से किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने वही की इत्तबा का हुक्म अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दिया और उम्मतों को भी दिया कि अल्लाह के अहकामात की इत्तबा किया करो। फिर आगे एक हुक्म दिया, वो रवादारी से मुताल्लिक है कि जो लोग तुम्हारे माबूदान बातला की पूजा करते हैं, उनके झूठे खुदाओं को आप उनको गाली न दें, उनके मुताल्लिक ऐसा नाजेबा जुमला न कहें कि वो आपके सच्चे खुदा के मुताल्लिक ऐसा कहें और आपको उससे तकलीफ हो, इसलिए उससे बचाया गया। और आखिर में कसमों के हवाले से मसाइल अर्ज किए गए। इससे अगले रकू के अंदर जो 8वें पारे का पहला रकू है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के वही निशानात बयान किए और फरमाया कि हमने
इस ज़मीन व आसमान और इस निज़ाम कायनात को तरतीब दिया है। फिर हमने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा है। फिर नबियों के मुकाबले में जिन्नात, शयातीन, उनके दुश्मन, वो अपने दुश्मन उनके दिलों में गलत किस्म के ख्यालात डालते हैं। अल्लाह नबियों को वही भेजता है। ये हक व बातिल का मार्का है जो हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा तक चला रहेगा। इसका फैसला क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात करेगी। अल्लाह के फैसले में कोई शख्स तब्दीली नहीं कर सकता। तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, अल्लाह के कलिमात वो यानी सच्चे और इंसाफ पर मबनी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के इल्म की वसअत को बयान किया गया कि अल्लाह आपका रब हुवा आलम, बहुत खूब जानते हैं, मन युज़िल्लु अन सबीलिही, जो हिदायत के रास्ते से भटक जाए, और उसको भी जानते हैं जो हिदायत पर रहे। और ये भी बताया गया कि जो खाओ पियो अल्लाह का नाम लेकर, अगर तुम अहले ईमान हो, रिज़्क़ हलाल खाने की तरगीब दी गई और इस तरीके से नापाक और गंदे रिज़्क़ से मना किया गया, हराम खाने से रोका गया। इससे अगले रकू के अंदर जो 15वां रकू है, उसके अंदर ये बताया गया कि अंधेरी और अंधेरा और रोशनी जैसे यकसा नहीं है, इस तरीके से ईमान और कुफर एक नहीं है, तौहीद और शिरक एक जैसे नहीं, बल्कि तौहीद एक हिदायत है, रोशनी है, शिरक एक जुल्मत और अंधेरा है। जैसे रोशनी और अंधेरा इकट्ठा नहीं, तो मुवाहिद भी हो मुशरिक भी हो, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। अल्लाह की तौहीद को पर यकीन रखो। रिसालत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कसबी चीज़ नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अता है। अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहते हैं चुनते हैं और उसको जितना चाहते हैं अता फरमाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है, जिसको चाहें इस्लाम की हिदायत दे दें, उनके सीनों को उनके लिए खोल दें और उन्हें सिरात मुस्तकीम अता फरमा दें। ये अल्लाह तबारक व तआला के इनामात हैं। क़यामत के दिन अल्लाह सबको जमा करेगा और फिर वहाँ पर अल्लाह फैसले करेंगे। जिन लोगों ने जो कुछ किया उनके सामने आएगा, पता चलेगा कि शैतान के रास्ते पर कौन थे और बुरा रास्ता किनका था। उस दिन उनके अंजाम और हशर का पता चलेगा। इससे अगले रकू 16वें रकू के अंदर ऐलान बारी ताला क़यामत के क़याम का, कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को कायम करेंगे और फिर वहाँ अल्लाह सब के फैसले करेंगे, सबके अहवाल अल्लाह के सामने आएंगे, हर एक के हालात सबके आ जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला तेरा रब बेपरवाह है और बड़ी रहमत वाला है। और फिर इसी तरीके से फरमाया कि आए पैगम्बर, आप इनको कह दीजिए कि ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल करो, मैं अपनी जगह पर अमल कर रहा हूँ। यकीनी बात है कि जो जैसा अमल करेगा क़यामत के दिन, उसको वैसा ही नतीजा मिलेगा। मुशरिकों के जितने मुशरिकाना अमल हैं क़यामत के दिन सारे ज़ाय कर दिए जाएंगे, उनका उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं होगा। और फिर मुशरिकों के उन लोगों की आदत थी, तो एक तो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, दूसरा औलाद को कत्ल करते थे, और फिर ये कि बुतों के नाम पर औलाद को कत्ल करते थे। इस तरीके से अपनी खेतियाँ, अपने जानवर वो भी बुतों के लिए छोड़ देते थे, जबकि सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है और ये सब कुछ अल्लाह ने उनको दिया है। लेकिन फिर इसके बावजूद भी इन लोगों को ये समझ नहीं आती। इससे अगले रकू में जो 17वां रकू है, वह वल्लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशात, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया में भी और आखिरत में भी अपने इनामात का तज़किरा किया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बागात पैदा किए हैं। फिर उनमें ऐसे बागात भी हैं, ऐसी दरख्त हैं, पहले हैं जो छतों पर चढ़ जाती हैं, ऐसे हैं जो ज़मीन पे बिछी हुई हैं, उनमें खजूर है, उनके अंदर खेतियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हैं, जैतून हैं, अनार हैं। और ये बात याद रखिए, ये जितने फल हैं, हर फल कई कई रंग का होता है और मुख्तलिफ़ इलाकों में अल्लाह उन रंगों को पैदा करते हैं। इसी के साथ एक मसला भी बयान किया कि याद रखो, जिस वक्त तुम कोई फसल तैयार हो जाए और उसे काटो, तो वातू हक्कहू यौम हसादिही, जिस दिन उस फसल को काटते हो उस दिन उसका उशर दो, और वला तुसरिफू, उसको बेजा खर्च ना करो। उशर क्या है? उसका ज़मीन का हक अदा करना। वो ये है कि जो अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन दी है, अगर इसका पानी वो है जो पानी आसमान से या तो बारिश होती है उस इलाके में, या ये है कि दरियाई पानी है और ज़मीन सैराब हो जाती है, तो इसका 10वां हिस्सा। और अगर पानी तुम कीमतन लगाते हो, आबियाना और ठेका भरते हो, तो उसका 20वां हिस्सा है, ये अल्लाह के रास्ते में देना। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों की अक़साम बयान की, उनके नर और मादा बयान किए, उनके खुसूसियात बयान फरमाई और फरमाया ये सब हमारी कुदरत का इजहार है जो हमने तुम्हें अता किया है। उनके अंदर
बकरियाँ हैं, इस तरीके से भेड़ें हैं, गाय है, ऊँट है, ये तमाम जानवरों का अल्लाह ने अपनी कुदरत के इजहार के लिए उसका तज़किरा किया। इससे अगले रकू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि फरीज़ा रसूल के हिल्लत व हुर्मत का मेयार अल्लाह का कानून है कि कोई आदमी अपनी तरफ से किसी चीज़ को ना हलाल कर सकता है ना हराम कर सकता है। जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया वो हराम है, जैसे मैता, मुर्दार, खून, इसी दम मसफूज जिसको कहते हैं, लाम खंजीर, ऐसी ये रिच नापाक चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं, इनको कोई पाक नहीं कर सकता। जिनको अल्लाह ने हलाल किया है उनको तुम्हारे में से कोई उसे नापाक नहीं कर सकता। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों के शिरक से बचने की तलकीन की कि देखो ये सारी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं, अल्लाह तबारक व तआला जानता है, अल्लाह ने तुम्हें सारा कुछ अता किया, फिर भी रब के साथ गैरों को शरीक करते हो। इससे अगले रकू में जो 19वां रकू है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने चंद अहकामात इरशाद फरमाए हैं। उनमें से एक पहला हुक्म तो ये है कि ऐ पैगम्बर आप इनको ऐलान कर दीजिए और कह दीजिए कि खबरदार अल्लाह ने तुम पर हराम किया है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। दूसरा हुक्म कि वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप से हुस्न सलूक करो। तीसरा हुक्म वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, औलाद को रिज़्क की तंगी की वजह से कत्ल न करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं उनको भी। वला तक़रबुल फ़वाहिश, बुराई के करीब न जाओ, ज़ाहिर काम बुरे काम भी और बातिन भी। और इसी तरीके से कत्ल नफ्स, किसी को नाहक कत्ल भी ना करो, अल्लाह ने ये हराम किया हुआ है तुम्हारे ऊपर। ऐसे यतीमों के माल के करीब न जाओ। ऐसे ही हुक्म दिया गया कि खबरदार औफुल कैल, नाप तोल में किसी किस्म की कमी ना करो, इंसाफ के साथ मामलात को तय करो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। और इसके आखिर में फरमाया व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु, ये है मेरा सीधा रास्ता, इसकी इत्तबा करो। कुरान मजीद का एक मिजाज है, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बिबाज़, कुरान बाज़ जगह इख्तसार बयान करता है तो उसकी तफसील बाज़ जगह करता है। जैसे हमने सूरह फातिहा के शुरू में एक जुमला पढ़ा था कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम अता कर, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। इनाम की वजाहत पीछे गुजर चुकी कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का रास्ता। अब सिरात मुस्तकीम क्या है, इस पूरे रकू में उसी सिरात मुस्तकीम को बयान किया गया है कि शिरक न करना, वालिदैन से हुस्न सलूक करना, औलाद को कत्ल न करना, किसी जान को नाहक कत्ल करना, यतीमों का माल न खाना, नाप तोल में कमी न करना, और इसी तरीके से इंसाफ करना। ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं, और वादों को वफा करना और लोगों का हक अदा करना, अच्छे कामों की वसीयत करना, ये सिरात मुस्तकीम है और इसी की इत्तबा का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके आखिरी रकू में कुरान मजीद की अजमत को बयान किया कि वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये वो बाबरकत किताब है जिसको हमने उतारा, बड़ी बरकत वाली है। इसकी इत्तबा कीजिए और डरिए ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये कुरान मजीद की इत्तबा का हुक्म है। और ये कुरान मजीद हिदायत की किताब है, अल्लाह ने अपने तुम पर भेजी है। इसके अंदर हिदायत भी है, इसके अंदर रहमत भी है, और फिर ये किताब इंसानी हिदायत और कामयाबी और कामरानी का रास्ता भी है। और इसी में एक हुक्म ये भी दिया गया कि अपने आप को फिरका बंदी से महफूज करो, अहले हक और इस्लाम के रास्ते पर चलो। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, वो लोग जिन्होंने दीन में तफरकाबाजी की और वो अलहदा गिरोह और जमातें बन गए, मेरे पैगम्बर आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के तमाम उमूर अल्लाह की तरफ लौटते हैं। जो शख्स आखिरत में एक नेकी लाएगा उसको 10 का अजर मिलेगा, और जो इसको कोई बुराई करेगा वो एक के बदले में एक होगी। और कुल फरमा दीजिए इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, मेरे रब ने मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता की है। दीनन क़ियामन मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, मेरा दीन वो दीन है जो मिल्लत इब्राहीम के यकसुई वाला मजहब है, और वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम मुशरिकों में से नहीं थे। फिर आगे पैगम्बर ने ऐलान तबलीग किया, कुल फरमा दीजिए इन्न सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज,
میری قربانی، میری زندگی، میری دنیا سے رخصتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اسی کے حکم پر کو مانتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کا فرما بردار بنتا ہوں۔ اور پھر اس طریقے سے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، بلکہ ہر آدمی اپنے اعمال کی جزا سزا خود پائے گا۔ بلکہ یوں ہے کہ ہاں، اگر کوئی آدمی یعنی ایمان کے حوالے سے کوئی کسی کے ایمان کو نفع نہیں دے سکے گا، لیکن اعمال کے حوالے سے وہ اعمال حسنہ جو صدقات جاریہ کے طور پر ہیں، یا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کے لیے دعا مانگتی ہے، یا اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے، یا کوئی سال ثواب میں مسجد بناتا ہے، کنواں کھودتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، تو یہ تو نفع دے سکتا ہے، لیکن ایمان کسی کا کسی کو نفع نہیں دیتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور پھر انسان کی عظمت کو بیان کر کے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، بے شک وہ اللہ بخشنے والے بڑے